ऑफ दिस चैप्टर। हमने क्या थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, बट बहुत सारे बच्चे उसको अटेंड नहीं कर पाए थे। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। ओके Yes. ओके। रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए। Yes. Recording I am doing Yes. here, not here. I will upload this thing on my YouTube channel. You can see. Okay, I am screen. Note of that. What is the Teaching. name of your YouTube channel? My name is by name you can search. Still I have ninth class, but in this week I will upload the same. Okay, there you can see and you can understand the things. Okay. Yes. Okay, let us start chapter number 13. Yes. Why do we? So, so we have completed term 1 syllabus. Now we will be term 2. Here some chapters from chemistry, physics and biology. So I am starting from biology. Why do we fall ill? This is related to pathology or this microbiology thing. So what is there? Health and its failure. What is health? People consider health as just being physically fit. I am physically fit. It means I assume that I am healthy. But there are three parameters of being: he or fit, mentally fit, and socially or socially fit be there. Socially fit. So first is physically fit, means your body parts, organs all must be working properly. There should be no diseases. Again, maintain mental. Your brain should be working properly. Your central nervous system must be working properly because it controls everything. Whatever I am listening or whatever I am watching, all these things are controlled by our brain. Brain means mental. So, if brain is in sound condition, it is not having depression, disorders, and this tension, anxiety are not there. It's working properly, and if our brain is okay, every organ is working properly. So that mentally that person must be fit. Third one is social well-being. Living means I am interacting with you. You are interacting with me and other teachers. Interacting in your society, in your family, with your friends. That interaction must be well. अच्छी इंटरेक्शन वहाँ पे होनी चाहिए हमारे सोसाइटी में, जहाँ जिस एनवायरनमेंट में अपन रह रहे हैं। सोसाइटी का मतलब ये नहीं कि आदमी आदमी हो, हम डॉगी है, कोई निर्दोष प्राणी है, कोई पेड़ है। हाउ वी आर बिहेविंग विद दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, that is also very much important and equal to physically and mentally parameters. So these three parameters must be in sound position. So what are the conditions necessary for good? One is good physical and social environment, good economic conditions, social equality and harmony. These three things must be physical and social environment around us must be good economic कंडीशंस। आर्थिक रूप से हम अच्छे होने चाहिए, साउंड होने चाहिए, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं पर बहुत कुछ है। ठीक है, वो उससे हम चीज़ें बाई करते हैं, लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है। सोशल इक्वलिटी, सोसाइटी में हम सबको सोशल इक्वलिटी हो। जैसे आज हमारा देश, हमारे क्या कई नस्लवाद है, कई धर्मवाद है। तो इन चीज़ों से हम सभी बच्चों को ऊपर आना है, तभी हम अच्छे नागरिक कहलाएंगे। सोशल इक्वल होंगे, बराबर होंगे, सबको बराबर, कोई नीचा ऊंचा। ठीक है ना। कोई ये बोलता है कि मैं तो बहुत, तो तुम पीछे के अपनी हिस्ट्री बता दो। क्या तुम्हारे बाप दादा या परदादा दादा क्या यही जाति के थे क्या? कोई रिकॉर्ड है क्या उसका? नहीं है। तो ऐसा कोई नहीं माने कि मैं नीचा हूँ और कोई ऊंचा हूँ। इक्वल एंड सोशल हार्मनी मस्ट बी देयर। सब में सांप्रदायिक सद्भाव होना चाहिए, इंटरेक्शन, आसपास की इंटरेक्शन अच्छी होनी चाहिए। तो ये तीन पैरामीटर्स
कंडीशंस जो है दे आर नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। तो सोशल एंड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट में क्या है? क्लीन गुड सैनिटेशन है, प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, ये होना चाहिए, तभी अच्छा है उसमें। गुड इकोनॉमिक कंडीशंस, प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, फॉर अर्निंग, टू हैव न्यूट्रिशियस फूड एंड टू लीड ए हेल्दी लाइफ। अच्छी लाइफ जिए सब लोग, अच्छा फूड मिले तो फिजिकल कंडीशन अच्छी होगी, फिजिकली अच्छी होगी तो हमारा ब्रेन भी अच्छे से काम करेगा। और ये सब होने के लिए ज़रूरी है कि वी हैव गुड इकोनॉमिक अर्निंग्स आर देयर। सोशल इक्वलिटी एंड हार्मनी वी ऑलरेडी डिस्कस, दे आर ऑल्सो नेसेसरी फॉर हेल्दी एंड पीसफुल लाइफ। अगर हम ये जातिवाद धर्मवाद करेंगे तो हम तो खुश रहेंगे ही नहीं रहेंगे, साथ में अगले जो सामने वाली पार्टी जिसको हम तंग कर रहे हैं वो भी खुश नहीं रहेगा, दोनों परेशान होंगे। ठीक है ना? तो इससे हमें ऊपर उठना इन चीज़ों से। ओके, डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री, दोनों में डिफरेंस क्या है? इट इज़ ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्दी, इसमें 3 पैरामीटर्स आते हैं, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, दैट पर्सन मस्ट बी परफॉर्मिंग वेल। बट डिजीज फ्री में क्या है? इट इज़ जस्ट अब्सेंस ऑफ डिजीजेस। मीन्स फिजिकली वो आदमी फ्री है, बाकी उसके मेंटल और सोशल पैरामीटर्स में वो खरा नहीं उतरता है। यानी एक पैरामीटर्स को ही वो फॉलो कर रहा है, एक भी पूरा नहीं कर रहा है फिजिकली में भी। डिजीज से फ्री है वो, बीमारी नहीं है उसको। हेल्दी में इट रेफर्स टू इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट एंड इट रेफर्स ओनली टू द इंडिविजुअल्स। इसमें क्या है? 3 पैरामीटर्स आते हैं जिसमें हम अकेले नहीं हैं। हेल्दी में हमारी हेल्थ अच्छी होने के लिए हम अकेले नहीं, आसपास का एनवायरनमेंट, आसपास के लोग भी उतने पूरे जिम्मेदार होते हैं। बट डिजीज फ्री में वी आर ओनली कंसर्निंग विद आवर सेल्व्स, केवल अकेले हम इंडिविजुअल्स ही होते हैं जो इस काम को करते हैं। हेल्दी इंडिविजुअल है गुड हेल्थ, और हेल्दी है तो दैट पर्सन विल बी हैविंग गुड हेल्थ। बट डिजीज फ्री मीन्स कोई ये गारंटी नहीं है कि उसके पास अच्छी हेल्थ होगी, दैट पर्सन मे बी हैविंग पुअर हेल्थ। उसके डिजीज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेंटल नहीं, पागल नहीं है, वो पागल भी हो सकता है। बीमारी अगर फ्री है तो भी वो अच्छी हेल्थ वाला भी हो सकता है, पुअर हेल्थ वाला भी हो सकता है। इज इट ओके स्टूडेंट्स? हैव यू अंडरस्टूड द टॉपिक्स आई हैव कवर्ड टिल नाउ? 2 slides. Clear to everyone? Yes, sir. Okay. Yes. Okay. So what does disease look like? बीमारी कैसी दिखती है? किसी को बीमारी ने देखा है क्या? देखा है किसी ने? नहीं देखा है? नो सर। हमने नहीं देखा बीमारी। No, sir. बीमारी कैसी दिखती है ये बात करते हैं। When a person is affected by a disease, either the normal functioning or the appearance of one or more system of body changes for the worse. नॉर्मल फंक्शनिंग अफेक्ट होती है या कुछ सिम्टम्स हमारी बॉडी जो चेंज साइन दिखाती है, कुछ उन साइंस को या चेंज बोलते हैं, सिम्टम्स बोलते हैं, लक्षण बोलते हैं हम, वी आर कॉलिंग इट सिम्टम्स। ऑन द यस टेल मी। ज़ोंबियन वो zombies. ज़ोंबीज क्या होते हैं? ज़ोंबीज कहाँ से बीच में आ गए? दूसरे आदमियों को. वो we will be discussing it later because this is something different from this topic actually. Okay, later we will be discussing your thing also. Of symptoms, the physicians look for the signs of a particular disease and conduct tests to confirm the disease. So what the physician, doctor, फिजिशियन हम जाते हैं ना, फिजिशियन नॉर्मल कोई बीमारी होती है तो फिजिशियन चेक करता है, हमारे सिम्टम्स देखता है और उसके बाद में वो टेस्ट करवाता है फॉर डायग्नोसिस डिजीज. वेन एवर द टेस्ट इज कन्फर्म, डॉक्टर्स और फिजिशियन राइट प्रेस्क्राइब्स सम मेडिसिन फॉर दैट पर्टिकुलर डिजीज पर्सन. सो बीमारी दिखती नहीं है, हमें क्या दिखता है? सिम्टम्स दिखते हैं.
because whenever the pathogen which is causing the disease, it is inside our body, or any disease which is pathogen, it is not diagnosed properly by us. Then we go to physician, he looks for the symptoms and he tell you get this test conducted, or that to get diagnosed for the disease. कि उसको लगता है कि ये डिजीज़ है, इसके सिम्टम्स ये है, पहले एक बार टेस्ट करवाओ तो पता लगेगा कि ये सिम्टम्स जो शो कर रहा है वही बात है। कई बार क्या होते हैं सिम्टम्स कुछ और होते हैं, और डायग्नोसिस से पहले वो बीमारी कुछ और हो जाती है, तो कई बार दवाई काम में नहीं करती है। तो इसलिए दो चीज़ें, सिम्टम देखना, देन डायग्नोसिस करना, उसके बाद डिजीज़ का पता लगता है, फिर दवाई दी जाती है उसको। तो ये बीमारी है एक्यूट डिजीज़ एंड क्रोनिक डिजीज़। Acute disease means they last period of time and doesn't have longer effect on the health. ज़्यादा लंबा पीरियड नहीं होता है, छोटे पीरियड के लिए होती है, और उसका हेल्थ पे ज़्यादा लंबा असर, ज़्यादा गंभीर असर नहीं पड़ता है। थोड़े टाइम बाद में वो ठीक हो जाती है, आदमी रिकवर हो जाता है। जैसे कोल्ड है, कफ है, टाइफॉइड, कोलेरा एटसेट्रा, उनका ज़्यादा गंभीर असर हमारे शरीर पे नहीं पड़ता है। क्रोनिक डिजीज़ दे आर डेंजरस। आर डिजीज विच लास्ट फॉर ए लॉन्गर टाइम, लंबे टाइम तक वो रहती है शरीर में, एंड हैव लॉन्ग टर्म ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन द हेल्थ। लॉन्ग टर्म, लंबे टाइम तक, ड्रास्टिक मतलब डेंजरस इफेक्ट, हमारी हेल्थ डिटेरियोरेट होती है, उससे उसकी वजह से खराब होती है। कौन कौन सी है? डायबिटीज़ क्या सही हो जाता है क्या? नहीं होता है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, एलिफेंशियासिस, आर्थराइटिस। एलिफेंशियासिस में क्या होता है, व्यक्ति के पाँव जो है वो हाथी की तरह मोटे होते हैं, इसलिए इसको हिंदी में हाथी पाँव भी बोलते हैं, एलिफेंशियासिस। ठीक है। आर्थराइटिस, जो जॉइंट्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम होती है। कैंसर अगर शुरुआती स्टेज में तो ठीक हो सकता है, बाद में अगर गया तो आदमी की जान ही ले लेता है वो। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, ये हमने बात करी। सो यहाँ तक अपन आज स्टॉप करते हैं, बाकी चीज़ कल पढ़ेंगे। आपके कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आई विल स्टॉप द क्लास। यस, टेल मी। यस स्टूडेंट्स, क्या चीज़ है? Yes. हाँ, आई विल सेंड। ओके, 9 चैप्टर नोट्स एंड